Hello all. So continuing with the topic that is data integration and consolidation. Now we all know that integration matlab to combine the data. So data integration is a process in which we combine all the relevant data and put it in an order which is very easy to load into the data warehouse. It can be considered as a pre-process type before major transformation takes place. यानी pre-processing in the sense जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन सा डेटा needed है, कौन से order में इसको load करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, it will not take time and then we can pass it on to data transformation. यानी इसको एक information form में हम कैसे store कर सकते हैं. तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्विंग रिजॉल्विंग एनी डिस्क्रिपेंसीज की कोई कंफ्यूजन है, कोई मल्टीपल नेम्स है, प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज हो रहा है. सो ये सब चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एंड वंस दैट इज डन वी गो ऑन टू द डेटा लोडिंग स्टेज. नाउ डेटा लोडिंग का मतलब होता है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम्स इनटू द डेटा वेयर हाउसेस. कि हम कंप्यूटर सिस्टम मेमोरीज में ऐसा मल्टीपल सिस्टम्स होता है जहाँ पे मल्टीपल डेटास आर अवेलेबल, सो दैट physical movement of data from system to the data warehouse is called as data loading. It can be done in the following ways. First is the initial load. Initial load is when data warehouse हमने create किया है and for the very first time we are storing data into the data warehouse. Next is incremental load. Incremental load is a periodic loading technique applied की फिलहाल ये चीजों के related necessary है, so we will only part one of the entire data, so 10% of the data is loaded and in the next increment next 10% will be loaded as per the requirements की जब जब जैसे जैसे requirements change होते जाएगा उस हिसाब से हम data को bits and pieces में data warehouse में load करते रहेंगे. एंड लास्ट वन इज फुल रिफ्रेश. फुल रिफ्रेश मतलब पहले के जो भी कंटेंट्स थे डेटा वेयर हाउस में दे आर ऑल ऑब्सोलीट, दे आर नो मोर इन यूज, सो उसको पूरा डिलीट करो और पूरे डेटा वेयर हाउस को नए डेटा से लोड करो. सो दैट इज कॉल्ड एज फुल रिफ्रेश. डेटा रिफ्रेश वर्सेस डेटा अपडेट. नाउ एज वी सॉ दैट डेटा रिफ्रेश जो होता है, yeah, so data refresh, we saw that कि initial load के बाद data warehouse needs to be maintained and updated properly. So रिफ्रेश और अपडेट में डिफरेंस क्या है? अपडेट का मतलब होता है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो हम करते हैं, जैसे इनिशियल लोड होने के बाद अगर किसी और को वही टॉपिक के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए जो करेंटली डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, सॉरी डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल नहीं है, देन दैट इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड कि जो रेलेवेंट डेटा है वो भी हम डेटा वेयर हाउस में लाके रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपडेट करना. रिफ्रेश करना इज कंप्लीटली रीलोडिंग ऑफ द डेटा, यानी एक चंक ऑफ डेटा हो गया बट इट इज नो मोर इन यूज और ऑब्सोलीट हो गया है या उसका अभी जरूरत नहीं है, देन वी आर रिप्लेसिंग इट विद ऑल द न्यू सेट ऑफ चंक्स ऑफ द डेटा. So data loading is basically moving the data, physically moving the data into the data warehouse. It takes place within a load window. Load window मतलब at a time आप कितना data physically move कर सकते हो from one system to another. The trend is to near real-time updates of the data warehouse as the warehouse is increasingly used for operational applications. ट्रेंड इन द सेंस कि ऐसा नजदीक में रखो डेटा वेयर हाउसेस एंड सिस्टम्स की वो फटाफट लोड हो जाए, ज्यादा टाइम ना लगे, so that updates भी अगर कुछ हुआ in ongoing process तो वो भी easily available हो because data warehouses are widely used. So next comes loading of dimension tables. Now dimension tables हमने देखा था कि fact tables और dimension tables भी load करना जरूरी है क्योंकि data warehouse में होता ही है facts and dimension tables. So how do we load that? Let us see. Procedure for maintaining the dimension table includes two functions: initial loading of the tables and thereafter applying changes on the ongoing basis. तो उसमें दो टेक्निक्स है, मतलब दो प्रोसीजर्स है. एक तो इनिशियल लोडिंग ऑफ द टेबल्स की जो डिमेंशन टेबल्स है वो लोड करने हैं और उसके बाद जो भी इसमें चेंजेस हो गए वो कंटिन्यूसली उसको अपडेट करना है. Now see, system generate keys are used in data warehouse. The records in the source system have their own key. Therefore, before an initial load or an ongoing load, the production keys must be converted to system generate keys in the data warehouse. यानी ऐसा ना हो कि कोई भी आके कभी भी डेटा
जनरेट करे या उसको स्टोर करे, इसके लिए सिस्टम जनरेटेड कीज यूज होता है डेटा वेयर हाउसेस में। ये जो रिकॉर्ड्स है ये इनके अपने सोर्स सिस्टम के खुद के कीज होते हैं। सो जब भी लोडिंग हम करते हैं तो इसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि लोडिंग से पहले या जब इनिशियल लोडिंग हो रहा हो तो ये जो सोर्स सिस्टम का कीज है वो डेटा वेयर हाउस के सिस्टम जनरेटेड की के साथ मैच होना चाहिए या उसमें उसको कन्वर्ट करना चाहिए। ओनली देन इट इज पॉसिबल टू लोड। अदरवाइज क्या होगा कि एनी वन कैन कम एंड चेंज दैट डेटा, इसलिए। Another issue is related to the application of type 1, type 2 and type 3 dimensional changes to the data warehouse. Figure following shows that how to handle it. यानी ये रहा देखो दूसरा dimension type 1 type 2 मतलब यहाँ पे दिया हुआ है. So let us go through this whole diagram. See, this is the source data system which will keep on changing और say adding the dimension tables का attributes. तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. दैट विल बी इन डेटा स्टेजिंग एरिया. तो हमने देखा था कि स्टेजिंग एरिया में कुछ नहीं बट डेटा क्लेंजिंग एक्टिविटी परफॉर्म होता है. क्लेंजिंग इज वेयर यू आर रिमूविंग रिडंडेंसीज, अननेसेसरी अगर जरूरत नहीं है तो निकाल रहे हो, जहां पे जरूरत है वहां पे डुप्लीकेट कॉपीज यू आर कीपिंग. एंड क्रिप्टिक डेटा है कुछ यानी या रीयूज कहीं पे डेटा है तो उसको हम निकाल रहे हैं. एंड वी आर मेकिंग श्योर कि रॉ डेटा है जिसका जरूरत नहीं है वो हम एक साइड पे रख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डेटा है वो सारे कंबाइन करके रख रहे हैं. सो ये सब जो प्रोसेस होता है दैट कम्स इन स्टेजिंग एरिया. नेक्स्ट वहां से डिटरमाइन इफ रो एग्जिस्ट फॉर दिस सरोगेट की, यानी उनसे की प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं. मैच चेंज्ड वैल्यूज विद द एग्जिस्टिंग डायमेंशन वैल्यूज, यानी काफी बार हमने देखा गया कि डेटा वेयर हाउसेज में जब हम रखते हैं सेम इंफॉर्मेशन के दो अलग अलग टेबल्स में दो अलग अलग नाम होते हैं. जैसा हमने देखा था एम्प्लॉय नेम एंड एक में था ई नेम. तो डेटा वेयर हाउस में हम जो भी नाम रख रहे हैं वो किसी भी टेबल के साथ मैच हो रहा है क्या, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट. Exactly matches, then there is no action to be taken. If it does not matches, then we have this type problems. Like type 1 is overwrite the old value. कि अगर वो नाम और ये नाम मैच नहीं हो रहा है तो जो ओल्ड वैल्यू था उसको ओवरराइट करो, यानी उसको हटा के जो डेटा वेयर हाउस में जो नाम दिया है ओरिजिनल टेबल में वो नाम डाल दो. क्रिएट अ न्यू डिमेंशन रिकॉर्ड. इफ नॉट दिस देन गो फॉर टाइप 2, दैट इज नया डायमेंशन टेबल बनाओ, उसमें नए नाम के साथ नए एट्रीब्यूट्स के साथ स्टोर करो so that data warehouse and original data match करे. और else push down changed value to old attribute field, यानी जो डेटा वेयर हाउस में नया नाम दिया है उसको चेंज करके उस नाम से रखो जो ओरिजिनल टेबल में है, यानी जो ओल्ड वैल्यू है उसी नाम से डेटा वेयर हाउस में रखो. सो ये जब होता है कि नाम अलग अलग है डेटा वेयर हाउस में और ओरिजिनल टेबल्स में तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं टू स्टोर दैट डेटा. सो यू कैन हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स टू हैंडल. Next we study loading the fact tables. अभी fact tables तो पता है history and incremental loads. Like fact table is the concatenation of keys from the dimension tables. तो हमने वो star schema, snowflake schema में देखा था कि fact tables में कुछ नहीं होता है, सारे dimension tables के जो primary keys होते हैं वो store होते हैं. Therefore for this reasons dimension records are loaded first. यानी अगर fact tables load करना है तो you make sure that you have to लोड डायमेंशन टेबल्स फर्स्ट, क्योंकि जब डायमेंशन टेबल्स विल बी लोडेड उनका प्राइमरी की तभी अवेलेबल होगा. एंड फ्रॉम दैट डायमेंशन टेबल्स यू कैन पिक अप द प्राइमरी कीज एंड मेक योर फैक्ट टेबल्स. A concatenated keys is created from the keys for the corresponding dimension tables. यानी concatenated keys मतलब एक डिमेंशन टेबल किसी और डिमेंशन टेबल को कनेक्टेड है जो हमने स्नोफ्लेक में देखा था. तो इसका कॉम्बिनेशन यानी दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम दोनों टेबल की कीज हम फैक्ट टेबल्स में स्टोर कर देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा लोडिंग कि कैसे हम डेटा लोड करते हैं, कैसे प्रोसेस में करते हैं, इनिशियल, इंक्रीमेंटल या फुल रिफ्रेश, फिर डायमेंशन टेबल्स कैसे लोड होता है और फैक्ट टेबल्स कैसे लोड होता है. ऑल्सो वी हैव सीन कि अगर डेटा का एट्रीब्यूट्स वगैरह मैच नहीं होता इन ओरिजिनल डेटा एंड डेटा वेयर हाउस देन व्हाट आर द टाइप्स वी यूज टू हैंडल सच काइंड ऑफ actions. So next video we'll be seeing data qualities and issues in data cleansing.